Welcome student. In this class we will start class 8 Geography chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resource. This chapter based on the various type of resource. So you have land resource, soil resource, water resource, natural vegetation and wildlife. Now as we have tried to understand the various resources as the resources are being something usable and how can they protected, how can they conserve and what its importance. So the very first resource that we talking about in this chapter, which is land resource. So if we have see a globe, then we find out that the 3/4 earth surface is completely covered with water and 1/4 of earth surface is covered with land. So out of this 1/4, 70% land is uninhabited and 90% of population living on 30% area. If we have seen in a percentage, then 70.8% of total earth surface is covered with water and 29.2% covered with land. So out of this 29%, it means we have how much land on earth? We have 29% of land on earth that we conclude as 100%. Then out of this 100%, 70% land is uninhabited. It means अगर हम इसे परसेंटेज में काउंट करते हैं, देन वी हैव 29% ऑफ लैंड. तो 29% को ही अगर हम 100% मान लें तो 70% एरिया क्या है? अनइनहैबिटेड है, यानी रहने लायक नहीं है. और पूरी दुनिया की 90% पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 30% एरिया पे ही रहती है. इट मीन्स लॉट्स ऑफ लैंड जो है वो अनइनहैबिटेड है, रहने लायक नहीं है और यूजेबल नहीं है. इट मीन्स वी हैव वेरी लेस percentage of land that we use, so that the land resources is very important, including desert, forest, water bodies, plains and rivers. So अब जो हमारे पास 30% लैंड है उसको हम यूज किस लिए करते हैं? सो यूज ऑफ लैंड for various purpose, agriculture, forestry, mining, building house and road, and these uses of land completely determined on a physical and political factors. The physical factor including soil, climate and water, and the and political factor which is human. Previously we have already studied that the human as itself a resource, which called the human resource. So it including population, which means demand, and technology, यानी population यानी किसी चीज़ की डिमांड कितनी है उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रोडक्शन या उसका मॉडिफिकेशन होगा. एंड देन द टेक्नोलॉजी डिफाइन दैट हम किसी चीज़ को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. So in this chapter we will learn about land uses, conservation of land resource, soil, factor of soil formation, soil conservation, water, conservation of water, natural vegetation and wildlife, distribution of vegetation and conservation of natural vegetation and wildlife. So there is something fact which given in your book. So the Darjeeling is famous the world over for its tea leaf and tea garden. दार्जिलिंग जो है पूरी दुनिया में, दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग इंडिया के असम स्टेट में है. तो ये जो दार्जिलिंग है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है फॉर टी कल्टीवेशन. While Jamaica and Arabia are famous
फॉर देयर कॉफ़ी, जमैका अरेबिया कॉफ़ी के लिए फेमस है। ईस्टर्न यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया आर वेरी फेमस फॉर देयर वाइन, ईस्टर्न यूरोप और ऑस्ट्रेलिया वहाँ वाइन के लिए फेमस है बिकॉज ग्रेप्स कल्टिवेशन और फ्रूट कल्टिवेशन, यूरोप क्योंकि कॉर्निफोरस एरिया है तो वहाँ पे फ्रूट कल्टिवेशन ज़्यादा होता है। सो डू यू नो वाई इंडिया इज नॉट फेमस फॉर वाइन एंड कॉफ़ी? अब इंडिया जो है वाइन कॉफ़ी के लिए फेमस क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ ये टी के लिए फेमस है? या फिर ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया टी के लिए फेमस क्यों नहीं है? क्यों ये कॉफ़ी के लिए और वाइन के लिए फेमस है? सो ये ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंड टाइप, बिकॉज लैंड डिटरमाइन दैट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप दैट वी कल्टिवेट ऑन अ सर्टन लैंड, यानी जिस तरह की लैंड होगी हम उसी तरह के क्रॉप्स को वहाँ कल्टिवेट कर पाएंगे। सो द वेरिड लैंड फॉर्म अराउंड द वर्ल्ड in conjunction with atmosphere and water available are important factor which decide the ideal crop that we grown in the region, यानी पर्टिकुलर लैंड टाइप, वहाँ का एटमोसफेयर और वाटर ये डिसाइड करते हैं। इट मीन्स वाटर मीन्स रेन और इरिगेशन सिस्टम, काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे किस तरह के आइडियल क्रॉप्स को ग्रोन किया जाएगा। The lifestyle in these region is also completely different from each other due to same reason। अब क्या है कि जैसे because we know that कि वर्ल्ड में कुछ भी इवन नहीं है, nothing is even in the world। सो जिस तरह से क्रॉप्स अनइवन है उसी तरह से इन रीजन्स में लोगों की लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अनइवन है बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट काइंड ऑफ atmospheric conditions. For example, people in Sahara desert wear thin light cloth. Why? Because the climate is very warm. Live in mud house and consume item made of wheat and dates. बिकॉज उस रीजन में वीट और डेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ काफ़ी गर्मी है, इसलिए लोग पतले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं क्योंकि मिट्टी के घर अंदर से ठंडे होते हैं। सो ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ पीपल इन द मंगोलियन डेजर्ट, अब यहाँ देखो दो डेजर्ट की ही बात कर रहे हैं, ओके, वन इज अ सहारा डेजर्ट एंड वन इज अ मंगोलियन डेजर्ट। इन प्रीवियस क्लासेस ये ज़रूर हम लोग पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट भी क्या होते हैं, वर्ल्ड में डेजर्ट भी दो तरह के हैं, कोल्ड डेजर्ट्स और हॉट डेजर्ट। सो सहारा इज अ हॉट डेजर्ट एंड मंगोलियन डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट। So in Mongolian desert region, people wear thick cloth, live in a brick house and survive mostly on the meat because of the different atmospheric condition. The land or topography, soil and climatic conditions vary from place to place. यानी इस अर्थ पे टोपोग्राफी यानी लैंड टाइप्स, सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, अलग अलग है पूरी दुनिया में, इसलिए लोगों का रहन सहन, टाइप ऑफ क्रॉप दैट वी ग्रोन और दैट वी कल्टिवेटेड, ये भी डिफरेंस होता है। अलग अलग जगहों पे हम क्या खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, these completely differences, there is lots of variation in the world. So this is a reason why we have a different type of vegetation, wildlife in a different part of the world. Why? Because of the different kind of topographic, soil, climatic condition. So let's begin with the land resource. The part of the earth which is not covered by water, which is called land. यानी अर्थ का वो हिस्सा जो कि पानी से कवर्ड नहीं है, वो लैंड कहलाता है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि अर्थ सरफेस का ज़्यादातर हिस्सा जो है पानी से कवर्ड है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स फॉर अस, बिकॉज हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ कहाँ करते हैं, लैंड पे। सो लैंड क्या है, हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। The total surface area of Earth is about 510,072,000 square kilometer. Out of this, यानी इस पूरे सरफेस का we know that अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि 29% क्या है, लैंड है, रिमेनिंग 70.8% वाटर से
घेरा हुआ है, एंड दिस मीन वी हैव ओनली 29.2% इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन टू लीव। लेकिन उसका भी हम लोग कितने पे रहते हैं, सिर्फ 30% लैंड ही हम यूज कर पाते हैं, रेस्ट ऑफ देम 70% क्या है, अनइनहेबिटेंट है, अनयूजेबल है। ओके, देयर इज अ डेटा विच इज गिवन इन दिस table. So the only small percentage of land is available for human. Not all part of land is are habited. In fact, 90% of the world population occupy only 30% of land area that we have understand previously. The remaining area is either sparsely populated or uninhabited. यानी जो बाकी बचा हुआ एरिया जो है 70% का, वो रीजन या तो बिल्कुल ही अनइनहेबिटेंट है, वहाँ कोई नहीं रहता, या फिर बहुत दूर पर कहीं कहीं कुछ लोग रहते हैं. So the population distribution is uneven in a different part of the world. It's mainly due to the varying climatic condition and terrain. यानी ये जो कंडीशन है, कहीं बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, कहीं बहुत कम लोग रह रहे हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन. जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में गंगोटिक प्लेन यानी गंगा और यमुना का जो प्लेन है, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन कह सकते हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है. क्यों पॉपुलेटेड है? कंपैरिजन टू द सिक्किम, कंपैरिजन टू द Jammu and Kashmir, these places of northern India is much populated. Why? Because of the favorable condition for agriculture, industrialization and etc. The term population distribution mean the pattern of where people live. यानी population distribution का मतलब क्या है कि जहां लोग रहते हैं. तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज uneven place where very few people live are said to sparsely populated. On other hand, where the many people live are densely populated. यानी कहीं बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं बहुत कम लोग रहते हैं. Area which have rugged terrain, harsh climate, डेजर्ट, थिक फॉरेस्ट, यानी जहाँ पे बहुत टफ कंडीशंस हैं लाइफ के लिए, क्लाइमेट बहुत हार्श है, बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, या डेजर्ट रीजन है, फॉरेस्ट है, यानी वहाँ रहना काफ़ी मुश्किल है. तो वहाँ क्या होता है, लोग वहाँ रहना नहीं चाहेंगे, बिकॉज ना तो वहाँ इंडस्ट्रीज अच्छे से डेवलप हो सकती हैं, ना तो ट्रांसपोर्ट होगा, ना लोग अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे, ना लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे. सो इन हार्श कंडीशन पीपल डिनाई टू लीव, लोग वहाँ नहीं रहना चाहते हैं. और यही रीज़न है कि कंपैरिजन टू सिक्किम, कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, बिहार या गंगोटिक प्लेन जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है इंडिया में. Hence inhospitable climate or inhospitable terrain make these people sparsely populated like ग्रीनलैंड, मंगोलिया, साइबेरिया, यानी वर्ल्ड के कुछ हिस्से जहाँ का क्लाइमेट काफ़ी हार्श है, तो वहाँ लोग रहते तो हैं लेकिन बहुत कम लोग रहते हैं, जिसमें ग्रीनलैंड है, मंगोलिया है, साइबेरिया है. ऑन अदर हैंड द प्लेन एंड रिवर वैली आर वेरी फर्टाइल. और वहीं दूसरी तरफ प्लेन्स यानी जो मैदानी भाग है, जो रिवर वैलीज है, वो काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ एरिया है, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है. अब एग्रीकल्चर होगा तो क्या हम जितने भी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से लेते हैं. तो अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा यानी लोगों को जॉब मिलेगी, लोगों को डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, तो लोग क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस एरिया में रहने के लिए. सो दैट दीज एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड लाइक in a northern plain or in India which is very fertile and densely populated. So there is a activity given in your book. Much of the southern part of Mongolia
is covered by the Gobi Desert, यानी मंगोलिया का ज़्यादातर हिस्सा गोबी डेजर्ट से घिरा हुआ है. गोबी डेजर्ट इज अ कोल्ड डेजर्ट. ओके, सो मंगोलिया इज हाई कोल्ड एंड विंडी प्लेस, यानी बहुत ठंडी सूखी हवादार जगह. सो इट इज़ वेरी एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है. यहाँ लॉन्ग विंटर्स, सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं, समर्स काफ़ी गर्म होते हैं, एंड द टेम्परेचर ऑफ जनवरी इज ड्रॉप एज लो एज -40 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इवन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ वेरी लिमिटेड. तो हम देख सकते हैं कि इतने हार्श क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कैसे हो सकता है, ज़्यादा लोग कैसे रह सकते हैं. दे कांट सर्वाइव. सो वो यहाँ नहीं रह सकते. सो दैट मंगोलिया इज स्पेशली पॉपुलेटेड. सो फाइंड आउट द ग्रीनलैंड एंड साइबेरिया आर स्पेशली पॉपुलेटेड, यानी हमें ये ढूंढना है कि क्यों ग्रीनलैंड और साइबेरिया क्यों यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं. सो इट इज अ एक्टिविटी यू हैव टू डू इन अ कॉपी. एंड again the activity to find out the 5 most sparsely populated and densely populated area, यानी 5 ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, 5 ऐसे एरियाज जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड है. जैसे सच एन एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट which is sparsely populated. Similarly, the northern plain of India which is highly populated. Okay, there is a quick fact. Greenland is 2 million square kilometer in the size. Greenland जो है 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है साइज में, यानी ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड एंड इट हैज़ अ जस्ट अ पॉपुलेशन ओनली 60,000. और यहाँ सिर्फ कितने लोग रहते हैं? 60,000. सो लेट्स सी द लैंड यूजेस. लैंड का यूजेस क्या है? द लैंड कैन बी यूटिलाइज बाय ह्यूमन in diverse way. These can include residential यानी रहने के लिए, industrial, agricultural, forestry and mining purpose. This is known लैंड यूज़, यानी लैंड को जब हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, रहने के लिए, फैक्ट्रीज़ लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, समटाइम फॉरेस्ट्री के लिए, उसके अलावा माइनिंग पर्पस के लिए, यानी अलग अलग तरीक़ों से जब हम उसे यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द लैंड यूजेस. एंड द वे दैट लैंड इज़ यूज्ड डिपेंड फिजिकल फैक्टर एज. अब हम लैंड को किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे ये डिपेंड करता है लैंड के फिजिकल फैक्टर्स पे. प्रीवियसली आई सेड इट डिपेंड्स ऑन कि लैंड किस तरीके का है. तो लैंड किस तरीके का है, या लैंड की टेरेन क्लाइमेट, या वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, वहाँ कौन कौन से मिनरल अवेलेबल है, एंड व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन दैट एरिया. सच एन एग्जाम्पल, if you have heard about the कॉन्गो बेसिन. कॉन्गो के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं. कॉन्गो रिपब्लिक एक छोटी सी कंट्री है अफ्रीका में. तो वहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज है. दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल बट दे कांट एबल टू यूज़. वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते. दे एक्सपोर्ट इट इन अ रॉ फॉर्म. वो रॉ फॉर्म में उसको पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट तो करते हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते. वाई? बिकॉज दे हैव नॉट मच टेक्नोलॉजी दैट दे यूज़. उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको यूज़ कर सके. सो मेनी एरिया द क्वालिटी ऑफ लैंड इज़ नॉट सुटेबल टू द एग्रीकल्चर. बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सुटेबल नहीं है, सच एज ग्रीनलैंड. तो ऑन द अदर हैंड इन some area are the undulating terrain, rocky surface may be an constraint फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल यूजेस. यानी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ का टेरेन जो स्लोप है लैंड का वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता है. रॉक सरफेस काफ़ी रॉकी होती है, प्लेन सरफेस नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या रेसिडेंश यानी घर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. सच एग्जाम्पल, द स्टेप स्लोप ऑफ माउंटेन हैव पुअर सॉइल क्वालिटी, द सॉइल इरोजन इज कॉमन. यानी जो माउंटेन का स्लोप होता है
वहाँ क्या होता है, वहाँ सॉइल क्वालिटी काफ़ी पुअर होती है, इट मीन सॉइल बहुत फाइन फर्टाइल नहीं होती, रॉकी सॉइल होता है, और वहाँ सॉइल इरोजन भी आसानी से हो जाता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, देखो अब ये ढाल है, अगर यहाँ से पानी गिराया जाए तो क्या होगा, यहाँ की सरफेस की मिट्टी आसानी से बह जाएगी, तो सॉइल इरोजन काफ़ी कॉमन है। हैंस दीज एरिया आर नॉट यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर। सो इसलिए ऐसे रीजन में एग्रीकल्चर बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। हाउएवर इन सम एरिया ऑफ माउंटेन वेयर द सॉइल क्वालिटी ऑफ गुड, वहीं दूसरी ओर जहाँ माउंटेन का सॉइल क्वालिटी अच्छा होता है, टेरेन क्या होती है, टेरेन थोड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे टेरेस फार्मिंग के ज़रिए क्या एग्रीकल्चर किया जा सकता है। सर्टेन एरिया हैव हाई मिनरल कंटेंट, यानी कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे काफ़ी हाई मिनरल कंटेंट होता है। दीज लैंड एरिया आर यूज फॉर माइनिंग पर्पस, यानी जिस रीजन के लैंड के नीचे काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स है, वहाँ उसको यूज़ किस लिए ज़्यादातर किया जाता है, मिनरल्स निकालने के लिए। सच एज एग्जाम्पल झारखंड। तो झारखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, सच एज झरिया धनबाद, which used for the mineral extracting like coal, iron and many more. तो इन रीजन्स में क्या होता है, एग्रीकल्चर नहीं होती है, एग्रीकल्चर कम होता है, वहीं माइनिंग एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं। Such example देखो, wells in South Africa has rich mineral deposits, has many mine have set up there. Technology is also important determine the land uses, यानी टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि हम लैंड को कैसे यूज करेंगे। एज द टेक्नोलॉजी improve over the time, area where agriculture can practice सक्सेसफुली एक्सपेंड, यानी टेक्नोलॉजी के साथ साथ धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आता गया, हमारी एग्रीकल्चर टेक्निक्स भी चेंज होती चली गई। या तुम देख सकते हो कि पहले लोग ऑक्स से या फिर जानवरों की हेल्प से एग्रीकल्चर किया करते थे, वहीं अब एग्रीकल्चर ट्रैक्टर से और दूसरी मशीनों के ज़रिए किया जाता है। वहीं पहाड़ों पर एग्रीकल्चर करना उस बहुत टाइम तक पॉसिबल नहीं था, लेकिन बाय द डेवलपिंग ऑफ टेक्नोलॉजी विद द टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टूर प्लगिंग, माउंटेन और हिली स्लोप्स पे भी एग्रीकल्चर करना पॉसिबल हो पाया है। As you can see here, there is a data of it's a analyzing data of land use pattern in the world. So you can see here that the name of the country, Australia, Brazil, Canada, China, France, India, Japan, Russia, UK, USA, और इन सारे कंट्रीज़ में कितना परसेंट लैंड हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, कितना पैस्चर यानी जानवरों को क्या कह सकते हैं, जानवरों को चराने के लिए या उनको या पैस्चर लैंड के तौर पे कितना एरिया फॉरेस्ट के लिए यूज़ हुआ है, और अदर एक्टिविटी में क्या यूज़ हो रहा है, लाइक रेसिडेंशियल और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उसमें कितना यूज़ किया गया है। So there is an activity which you have to do in a copy as homework. Okay, based on above data that I have shown you, list the country have highest percentage of area for each following uses, यानी आपको लिस्ट बनाना है कंट्री का जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए हाई परसेंटेज है, पैस्चर के लिए हाई परसेंट है, फॉरेस्ट के लिए है और अदर यूजेस के लिए। विच कंट्री फ्रॉम द लिस्ट विल हैव एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, यानी जहाँ सबसे ज़्यादा लैंड का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर के लिए हुआ, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, तो वो कौन सी कंट्री है। विच कंट्री विल हैव मशीन्ड इंडस्ट्री एंड ट्रेड देयर प्राइमरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, मतलब कहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए ज़्यादा यूज़ हुआ है। relate the land use of every country above the probable economic activity, यानी आपको ये पूरा चार्ट कॉपी में बनाना है। क्लियर?
ओके